Welcome back, my dear friends. This green color marks that we have by now reached the climax of this caption of chapter 17, offenses against property. On a positive note, हमने इस chapter 17 को 378 से the discussion related to theft शुरू किया था. Then we moved on to the discussions of extortion, then robbery, डकैती, criminal misappropriation, breach of trust, and finally cheating. और 415 से लेकर के 420 तक चीटिंग के प्रोविजंस है. बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. 421 से लेकर के 424 तक it relates to fraudulent deeds and disposition of property. And then there are provisions related to mischief 425 to 440 जो आज का डिस्कशन है. और इसके बाद offenses against property का जो लास्ट पार्ट है 441 से लेकर के 462 तक. 441 to 462. This is related to criminal trespass जिसमें house breaking etc. भी है, but this is not a part of your syllabus, so we'll not be discussing that anyway. और उसके बाद 463 से आगे forgery के provisions हैं. We will discuss that in chapter 18. Now mischief, actually mischief में जो ग्रीनी लाइन है वो ये है कि एक तो लास्ट पार्ट है और दूसरा हमें इसमें दो ही सेक्शंस डिस्कस करने हैं 425, 426. अभी डेफिनेशन में हम जाएंगे. Mischief is ordinarily punishable under 426 जिसमें 3 months imprisonment है. 3 months imprisonment or fine or both. Look, इस सेक्शन से 426 से पता चलता है कि अब हमें मिल गया इस पार्ट का सबसे कम पनिशमेंट वाला प्रोविजन कौन सा है. वी स्टार्टेड विद थेफ्ट, पेनल प्रोविजन रिलेटेड टू थेफ्ट, एंड वी सॉ कि उसमें यूजुअली उन सब में 3 years है. Then it came down to 2 years drastically in criminal misappropriation 403, and now this 2 years 3 months, this is the least. Or on that point I must add this to your inquisitivity क्योंकि कभी ये बात आपसे पूछी भी जा सकती है और मोस्टली ये चीज़ सिलेबस की चीज़ें पढ़ने में इग्नोर हो जाती है कि आईपीसी में सबसे कम पनिशमेंट किस प्रोविजन में है और कितनी है वो. Rather, I would say, to my knowledge, this is the least punishment, both in terms of imprisonment and in terms of fine as well. Section 510 है, which penalizes or punishes misconduct in public place by a drunken person, and the punishment is 24 hours. So IPC also penalizes in terms of hours, 24 hours or 10 rupees fine, only 10 rupees. So this is 510, or this is actually the penultimate section because इसके बाद आखिरी section है IPC का, that is 511, and the last chapter as well एक ही section है उसमें attempt का 511. Coming back to the discussion, 426 में ordinarily punishable है. फिर following provisions जो हैं 27 to 440, they actually penalize and delineate punishments for aggravated forms of mischief. I mean, in provisions में there are mischief has also been punished in those provisions, लेकिन with varying degrees of severity and gravity. For example, हम उनमें से कुछ की तरफ बस रेफर कर देते हैं, बस आप देख सकते हैं. For example, 431 अगर आप देखेंगे इसमें mischief by injuring a public road, bridge, etc. punishable है. इसी तरह 436 है mischief by fire और explosive, मगर कहाँ पे? In a place of worship or place of human dwelling or place used for custody of property. इसमें life imprisonment भी हो सकती है अगर mischief किया ऐसी जगह पे. Mischief, just mischief, not any other offense. See, non-compliance of these provisions की वजह से कितने ही offenses बढ़ते हैं, but penal law is almost impenetrable. What is penetrable is the execution and implementation part, and then it ends in 440. Now back to the discussion of this definition. So definition बहुत interesting है इसकी भी, because definition ही most difficult होती है criminal law में. So 425, we'll start with this. It is a section which defines mischief, which is punishable under 426, and it has with it
two explanations. With the help of two explanations and I think 8 illustrations, it tries to explain the offense of mischief. Kindly look at your bare acts, फिर हम इनको ingredient wise समझने की कोशिश करेंगे. How this 425 defines mischief. Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful gain or damage to the public. Whoever with an intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss, I think I said wrongful gain in the first line, wrongful loss or damage to the public or to any person. यानी public भी victim हो सकता है, private person भी. Causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief. अब इसको देखिए, डेफिनेशन बड़ी लंबी चौड़ी है, हम इसको ब्रेक करते जाएंगे, देखिए फिर आसान कितना हो जाएगा ये. Whoever with intent to cause, so ये क्या है? There should be an intention to cause or knowledge that the offender or that he is likely to cause, either this intention to cause or knowledge likely to cause. See, these both are related to mens rea because intention होना चाहिए और knowledge या knowledge होनी चाहिए, और है not and है. Now let me remind you again the section which defines voluntarily. उसमें voluntarily की meaning क्या होती है? Intention या knowledge या reason to believe. See, यहाँ इन दोनों को चुन के reason to believe को छोड़ दिया. So अगर उसको reason to believe है, so जो कार्डवेल रेकनेसनेस और कनिंघम रेकनेसनेस है क्रिमिनल लॉ की, हालांकि हमने वो पढ़ा नहीं है बिकॉज आपके सेमेस्टर में इतने हैवी टॉपिक्स को डिस्कस करना बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगा, बट उसमें भी ऐसा ही है था. चोर चोरी करने के लिए आया था और in his attempt to break the house he broke open a pipe, और जो गैस की पाइप थी, एंड गैस लीक हो गई, फिर दूसरी बिल्डिंग में चली गई और उसमें आग लग गई एंड killing the other plaintiff or the other party. तो he could not have seen that or foreseen that, जिसे हम subjective test of recklessness और negligence कहते हैं. तो अगर वो लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा liability हो जाएगी एक person पर. So knowledge, obviously this is a manifest mens rea, but the most manifest is intention. तो ये दो चीज़ें, या तो intention था cause करने का या सिर्फ knowledge थी कि उसके act से ऐसा हो सकता है. तो नॉलेज पे भी इस पर पकड़ा जाएगा. दैट मीन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करता है ये सेक्शन मिसचीफ का. ओके, whoever with intent to cause or knowing that is likely to cause. What? wrongful loss. अब इसके बाद किससे रिलेटेड होनी चाहिए नॉलेज या इंटेंशन? Of causing wrongful loss or damage. See, if you try to bring within your memory कि अभी तक हम sections में mostly dishonesty देख रहे थे, हर जगह dishonestly. तो when we said dishonestly under section 24, dishonestly का मतलब था both wrongful gain as well as wrongful loss. लेकिन this only has been pulled out for the purpose of this section. इसका मतलब mischief में सिर्फ wrongful loss होता है या सिर्फ wrongful loss as an essential चाहिए या particularly wrongful loss चाहिए. wrongful gain और wrongful loss दोनों हो गया तब तो हो ही जाएगा, बट मिनिमम ये है कि wrongful loss होना चाहिए. स्पेसिफिकली wrongful loss को recognize किया गया है और इसके लिए we don't have to visit section 24. You know it is defined in 23. wrongful loss is loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. एक इंसान जो legally entitled है किसी property को, उसको
उसका लॉस करना, बट बाय अनलॉफुल मीन्स। अगर लॉफुल मीन्स से वो लॉस किया गया, दैट इज नॉट wrongful लॉस। फॉर एग्जाम्पल इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट एट्सेट्रा। तो wrongful लॉस हो या डैमेज हो, तो डैमेज वर्ड से लगता है कि wrongful लॉस के अलावा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको नकली केस में फंसा करके उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के ज़रिए से, डिक्री के ज़रिए से अटैच करवा ली, दैट इज़ ऑल्सो डैमेज, ऑल्दो इट्स नॉट wrongful लॉस। उसे हम wrongful लॉस नहीं कह सकते, इसीलिए इन वर्ड्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है, आइदर दिस और दिस, wrongful लॉस और डैमेज टू। अब विक्टिम के हिसाब से देखिए, टू पब्लिक और एनी पर्सन। पब्लिक का जिक्र अभी तक नहीं था, अभी तक जो हम देख रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही ऑफेंसेस थे, बट इसमें विक्टिम पब्लिक भी हो सकती है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, यूजुअली ऐसे ऑफेंसेस जो पब्लिक को इंजूरियसली अफेक्ट करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज केसेस ऑफ नुइसेंस, जो 268 सेक्शन में डिफाइंड है। नॉर्मली ये 290 में पनिशेबल है, चैप्टर 14 में है ये, जिसमें हमने देखा था कि 268 से लेकर के 294A तक है। ये 268 से 294A तक है, जिसका पूरा टाइटल है ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरालिटी। और इसी में मैंने आपको बताया था क्वारंटाइन रूल्स को डिफाई करना। ये सब हम बता चुके हैं जो ऑब्ससिनिटी का जो टॉपिक है उसके डिस्कशन के अंडर। काइंडली गो थ्रू दैट लेक्चर। तो एक तो वो केस ऑफ नुइसेंस भी हो सकता है पब्लिक के अगेंस्ट, और या फिर प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। अब प्राइवेट पर्सन और या पब्लिक का रॉन्गफुल लॉस या डैमेज किया, किस चीज़ में, पर्सन में या प्रॉपर्टी में, या किस चीज़ में, माइंड में, बॉडी में, रेपुटेशन में, इसको आगे सेक्शन क्लियर कर देगा। इफेक्ट क्या होना चाहिए, नेचर किस चीज़ में ये रॉन्गफुल लॉस या डैमेज होना चाहिए। दिस कॉजेज द wrongful loss or damage to any public, to any person or public, and then इसका मेंजरिया आ गया अभी तक। नाउ एक्टस रेस, अब एक्टस रेस आएगा। ये बस आपके समझाने के लिए मेंजरिया और एक्टस रेस डिमार्केट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। लुक एट दिस सेक्शन वंस अगेन। whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property, causes destruction, ये है actus reus। उसने destruction किया किस चीज का, any property। any property से लग रहा है, movable भी हो सकती है, immovable भी हो सकती है। अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं किया, मगर उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी की जो अफेक्ट कर रही है ओनर को या किसी प्राइवेट पर्सन को या पब्लिक को, तो उसकी गुंजाइश आगे छोड़ी हुई है। कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या चेंज की प्रॉपर्टी में, या फिर चेंज प्रॉपर्टी में नहीं की। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, एक लैंड है बहुत बड़ा, और एक पर्सन है जो वहाँ टेंट बना के रह रहा है। इसने आकर के टेंट उखाड़ के सारा फेंक दिया विद एन इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू दैट पर्सन। तो अब इसने प्रॉपर्टी के साथ तो कुछ नहीं किया, जो वो लैंड है, बट ही डिड व्हाट, कॉजेज एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी चेंज इन प्रॉपर्टी, इसने चेंज की, और इन द सिचुएशन देयर ऑफ प्रॉपर्टी में इटसेल्फ कोई चेंज की, या दैट चेंज might be done in the property or in the situation of the property. In the situation thereof, now in the situation thereof, then इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। एक्टस रियस ये है, ये मेंजरिया है। मेंजरिया उसका था इंटेंशन टू कॉज, या नॉलेज थी कि उससे लाइकली हो जाएगा क्या, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज टू द पब्लिक या किसी पर्सन का। तो इतने में इसका मेंजरिया था। अगर उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी का नुकसान हो रहा है, इंटेंशन नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो डेफिनेटली मिसचीफ नहीं है। और फिर कैसे वो रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कर सकता है, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी को ख़त्म ही कर दिया। फॉर एग्जांपल फसल है, जला दी, काट के फेंक दी, या चेंज इन द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल पब्लिक नल है, उसकी टोटी तोड़ के ले गया, या हैंड पंप है, उसका पंप जो है वो ब्रेक करके भाग गए, और वो पब्लिक का था, प्राइवेट पर्सन का नहीं था, बट
ये क्लियर कट केस ऑफ मिसचीफ है। इसी तरह गाड़ी खड़ी है रोड पे, उसकी हवा निकाल दी, दिस इज अ केस ऑफ मिसचीफ। रॉन्गफुल लॉस हो गया, उसे कोई फायदा नहीं मिला खुद, इट्स नॉट अ केस ऑफ रॉन्गफुल गेन। और इवन डैमेज हो गया, कीलें वीलें खड़ी कर दी ताकि गाड़ी इसकी पंचर हो जाए। सो दिस ऑल आर केसेस ऑफ मिसचीफ। और एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ, या वहाँ जो भी जिस हालत में प्रॉपर्टी थी उसकी सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल जानवर थे, बंधे हुए थे, उनको खोल दिया ताकि वो भाग जाएं, दिस इज अ केस ऑफ मिसचीफ। And this must result as destroys or diminishes its, as results in the destruction of, destroys or diminishes its what value or utility. फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक मैदान है, वहाँ बच्चे रोज़ खेलते हैं यहाँ पे, और इसके बराबर में एक घर है। ओनर ऑफ दैट हाउस थॉट, ये रोज़ आते हैं और मेरे शीशे तोड़ते हैं, कांच, इनको सबक सिखाने का आसान तरीका है ट्रैक्टर लाओ और रात में पूरा खेत बना के छोड़ दो मैदान को। इफ़ दिस इज़ अ पब्लिक ground, doing this has not destroyed the property, it has diminished, it has not diminished its value, but it has diminished its utility. अब इसकी इफादियत, इसकी utility ख़त्म हो गई, so it has diminished या कम हो गई, that is a case of mischief. So as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously, or affects it injuriously, that means कि इसको इस तरह चेंज कर दिया that it results, it amounts to an injury, वही जो बाइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन में इंसान को कुछ हार्म हो गया इलीगली। सो इन ऑल दोज सर्कमस्टांसेस मिसचीफ हो गया। मैं फिर से इसको अच्छी तरह आप लोगों को समझाता हूँ ब्रेक बाय ब्रेक। मिसचीफ एक ऐसा ऑफेंस है जिसका मेंस या इंटेंशन टू कॉज इट सेल्फ रॉन्गफुल लॉस और डैमेज है, या नॉलेज दैट द पर्सन ऑफ दैट इज अक्यूज्ड इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। किसको? टू पब्लिक और टू एनी पर्सन। क्या इस एनी पर्सन का मतलब खुद भी है ये, यानी क्या ये अपने आप का भी रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कर सकता है, या अपनी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कर सकता है ये ऐसा? एनी पर्सन डज नॉट मीन हिम, क्योंकि अपना नुकसान तो कर ही सकता है इंसान। लेकिन अब अगर एनी पर्सन में कोई और होगा लेकिन प्रॉपर्टी इसकी अपनी होगी, तब ये क्या ऐसा कर सकता है? येस ही मे डू दैट। जैसे हमने इलस्ट्रेशन दी थी कि कोर्ट ने डिक्री दे दी कि ये फल या ये फसल ये किसी और की है, और बिफोर ही कुड टेक दैट, आपने या ऑफेंडर ने वो फसल डिस्ट्रॉय कर दी सो दैट ही कुड defraud that person. So that मैंने बताया था आपको is a case of criminal misappropriation also. तो इस इंस्टेंस में वो मिसचीफ भी हो जाएगा। इसका मतलब अपनी प्रॉपर्टी का भी इंसान मिसचीफ कर सकता है। इलस्ट्रेशन डी और इलस्ट्रेशन ई, ये बस यहाँ पे नोट करिए, इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते टाइम बताएंगे, इस बात का सबूत है। या जॉइंट प्रॉपर्टी में भी हो सकता है ऐसा। इलस्ट्रेशन जी आप देखेंगे तो उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी में एक घोड़ा होता है, तो देखिए उसको कैसे वो फायर करता है या बेच देगा, तो दिस इज अ मिसचीफ। सो व्हाट पर्सन डज, actus reus क्या है? ही कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी और एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी का भी मिसचीफ कर सकता है। डी और इलस्ट्रेशन के अलावा भी एक्सप्लेनेशन 2 है, अभी हम उसमें जाएंगे डिस्कशन में। एक्सप्लेनेशन टू कैसे समझाता है इसको कि मिसचीफ कैसे हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी। इसी लेमन्स लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि एक इंसान ने अपनी दुकान का, अपने मकान का इंश्योरेंस करवाया, तो उसने विद द नॉलेज, उसको मालूम है कि इंश्योरेंस वालों का ये रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा या वो मुझे पैसा देंगे, तो डेफिनेटली रॉन्गफुल लॉस है या डैमेज है उनका या क्रेडिटर्स का। उसने अपनी दुकान या मकान में आग लगाई, and many people do that. It is a case of mischief, अपनी प्रॉपर्टी का। और आप इसको एक्सप्लेनेशन 2 से बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशंस एंड द इलस्ट्रेशंस टुगेदर। अब हम उनके डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, मैं ब्रीफली समझा देता हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंडर को ये मालूम था कि प्रॉपर्टी किसकी है। जैसे हमने देखा मिसअप्रोप्रिएशन के टाइम
उसे बस ये पता होना चाहिए था वहाँ पे कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है या किसी और की है. सिमिलरली मिसचीफ के ऑफेंस में इट्स नॉट एसेंशियल दैट explanation 1 डिस्कस कर रहा हूँ. इट्स नॉट एसेंशियल दैट द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ for the offense of mischief that offender must know or intend to cause the loss or damage to the owner of the property. Let me look at the explanation. uh, yeah, here it is. Offense of mischief ka explanation 1. Here it is. It is not essential to the offense of mischief that the offender should intend or cause loss or damage to the owner of the property. यानी ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो कि मैं इसी मालिक का नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्रॉपर्टी, कॉल दिस अ प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल है, इट्स सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पी. ए थिंकिंग इट बिलोंग्स टू बी इसके साथ मिसचीफ करता है. सो दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट which will not operate as a ground of defense. ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन सेज कि ज़रूरी नहीं है इसको पता हो कि मैं किसकी प्रॉपर्टी का मिसचीफ कर रहा हूँ. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person. मगर सिर्फ उसका मेंजरिया काफ़ी है, मेंजरिया का एसोसिएट किसी से हो जाना काफ़ी नहीं है. He just had intention or knowledge that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring that property, whether it belongs to that person or not. कभी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहे कि that A caused committed mischief, yeah, A caused wrongful loss or damage of B, but thinking the property belonging to P, or P thinking that property belonged to B. Is this a case of mischief? Yes, it's a clear-cut case of mischief. Now explanation 2 जो मैं बता रहा था आपको, mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act. यानी अपनी प्रॉपर्टी का भी मिसचीफ कर सकता है एक इंसान, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, और to that person and others jointly. joint property का भी कर सकता है. illustration G है इसके लिए. let's move to illustration G. A having joint property with Z in a horse. A और Z का घोड़ा एक मुश्तरक प्रॉपर्टी है, दोनों ओन करते हैं. shoots the horse intending thereby to cause wrongful loss to Z. वो wrongful loss करना चाह रहा है Z का और उसको शूट करता है घोड़े को. A has committed mischief. सो प्रॉपर्टी को घर ले आना ज़रूरी नहीं है. जैसे थेफ्ट में वो मूव करता था, एक्सटॉर्शन में डिलीवर करवाता था, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएट करता था और कन्वर्ट करता था अपने यूज़ को. यहाँ क्या है, रॉन्गफुल लॉस काफ़ी है. यानी ए ने बी की चीज़ ले जा करके छीन करके डिस्ट्रॉय कर दी. फॉर एग्जाम्पल ए है, ए गया और ए ने फॉर एग्जाम्पल बी की प्रॉपर्टी उठाई, बी की रिंग मिली इसको या कोई चीज़, और दरिया में फेंक दी, तो रॉन्गफुल लॉस हुआ बी का. बी की रिंग दरिया में फेंक दी रॉन्गफुल, या उसका मोबाइल फेंक दिया, रॉन्गफुल लॉस हुआ, खुद रॉन्गफुल गेन कोई नहीं हुआ. दिस इज अ केस ऑफ मिसचीफ. और इसका इलस्ट्रेशन सी है प्रोबेबली. यस, ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड. इसके पास पोजेशन कैसे आया, इसके बारे में इलस्ट्रेशन साइलेंट है, बिकॉज अगर पोजेशन को लेकर के कुछ और फैक्ट्स जोड़ दिए इट विल बिकम ए क्लियर कट केस ऑफ थेफ्ट देन. इसलिए पोजेशन को लेकर के साइलेंट है. वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू दैट. वॉलंटरी मींस ही हैड अ रीजन टू बिलीव ये उसकी है या मेरी नहीं है, या नॉलेज थी कि ये उसकी है. विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू दैट ए हैज कमिटेड मिसचीफ. तो यहाँ भी इसने अपने रॉन्गफुल गेन किया नहीं, कोई रिंग ले जा करके या चीज़ ले जा करके वहाँ फेंक दी. दिस इज केस ऑफ रॉन्गफुल लॉस. इसी तरह डी और ई इलस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के मिसचीफ बताता है. मैं क्विकली उनको बताता हूँ. इलस्ट्रेशन डी में है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री है कोर्ट की तरफ से, या डेब्ट है, ए पे कर्जा है कुछ बी का. तो प्रॉपर्टी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल ये डब्बे हैं कुछ, ये इन सेटिस्फैक्शन ऑफ डेब्ट बी के हो गए, इसको लेने हैं. बिफोर ही कुड टेक देम सॉरी, ए ने उनको डिस्ट्रॉय किया विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू बी. दिस इज अ केस ऑफ मिसचीफ. इसी तरह इलस्ट्रेशन ई है, वो भी इंश्योरेंस पे बेस्ड है. एक इंश्योरेंस करता है शिप का, और फिर जो उनके अंडरराइटर्स हैं यानी जो इंश्योरर्स हैं उनको डिफ्रॉड करने के लिए, रॉन्गफुल लॉस उनका कॉज करने के लिए, और जानता है
he had a knowledge कि उनको पैसा देना पड़ेगा मुझे जब मैं उसको जलाऊंगा। उसने उस शिप को कास्ट अवे किया, यानी समंदर में भटकने दिया, खो गया। सो दिस इज अ केस ऑफ मिसचीफ अगेन। इसी तरह यू मस्ट गो थ्रू अदर इलस्ट्रेशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन ए है इसका सिंपलेस्ट, that burning voluntarily a property of other person. But if there is lack of knowledge or voluntariness is absent, it will not become a case of mischief. Ordinarily case of mischief तब बनेगा जब दूसरे की property को with intention of causing wrongful loss or with the knowledge that he is likely to cause wrongful loss destroy करे, और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किए तो करे तो डिमिनिश करे उसकी यूटिलिटी और वैल्यू या सिचुएशन देयर ऑफ, जिस चीज़ को भी, या इंजूरियसली अफेक्ट करे उसको बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टी। जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि ट्यूबवेल है, पब्लिक का है, और लड़कों ने जाकर शरारत में उसका पंप का, हैंड पंप का पंप तोड़ दिया। दिस इज़ अ केस ऑफ मिसचीफ। ऐसे बहुत सारे मिसचीफ के केस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब लगा हुआ है पब्लिक वे पे, बल्ब को पत्थर मार के तोड़ दिया और फोड़ दिया, दिस इज़ अ केस ऑफ मिसचीफ। अब उसमें वेरिंग डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट है सक्सीडिंग प्रोविजंस में। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन विद रिलेशन टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। आई होप you would have well understood all these offenses relating to property. In the next lecture we will move or jump far ahead 440 से सीधे 463 तक, जो इस चैप्टर से ही हमें बाहर ले जाएगा, which is the offense of forgery. I hope आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। If anything remains और समझ में ना आए चीज़ें, you may ask me by any modes that have been already informed or communicated to you. Thank you.